Hello everyone, Namaskar. Myself Dr. Dipali Gupta, BHMS, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. I am a homeopathic practitioner and I have been practicing since almost 11 years and serving humanity for a longer period of time, treating number of cases successfully. So today I am here to discuss something about homeopathy, a brief introduction about homeopathy with you all, and I'm honored to got this platform via IID. So today's topic is introduction about homeopathy. So let's start with the introduction. So I'll start with what is homeopathy. Homeopathy is a medical system based on the belief that body can cure itself. We believe that body has the power to heal itself. We believe there is a kind of vital force in the body and by homeopathy we can restore the vital force. And homeopathy uses very natural substances like plants, animals, minerals, vegetables and many more natural substances by which it is being derived. And we all know that it is an alternative medicine जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है एलोपैथिक और कन्वेंशनल मोड ऑफ मेडिसिन से, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ करती है एज आई हैव टोल्ड यू. तो ये बहुत ही नेचुरल मेडिसिन होती है. माइन्यूट डोज यूज़ करते हैं हम इसमें, सिमिलिमम यूज़ करते हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर. सो इट इज़ अ वेरी जेंटल एंड नेचुरल मोड ऑफ ट्रीटमेंट. And it is also federally approved medicine. It is being regulated by FDA. Also, it was developed in Germany over more than 200 years ago. So Dr. Samuel Hahnemann, he is Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. He discovered homeopathy over 200 years ago. And he postulated the principle like cures like, that is law of similimum. We are going to discuss further. And how it is made, there are lots of processes like potentization, dilution, succussion. These are a series of manufacturing of medicine, and by this process the efficacy of the medicine is being increased and the inherent power of crude material is being increased. So he, as you can see, he is Dr. Hahnemann, Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. He was a stalwart and he was based in Germany. He was born in Meissen, Saxony on 10th of April 1755, and he coined the term homeopathy, which is derived from Greek words like and suffering. So his guiding principle, as I told you, that he postulated the principle like cures like, which is law of similimum, and homeopathy achieved its greatest popularity in 19th century. And now I would like to tell you a very interesting story about Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. वो actual में तो एक एलोपैथ थे, but then he converted to an homeopath. And how he got converted, this I am going to explain you. उन्होंने मेडिसिन स्टडी की फॉर 2 years. उन्होंने उसके बाद MD किया फ्रॉम अर्लेंगन यूनिवर्सिटी, एंड देन उन्होंने ये देखा कि इतने क्रूअल प्रोसीजर्स हैं एलोपैथी के, एंड लाइक पेनफुल सर्जरीज एंड ब्लड लेटिंग प्रोसीजर्स हैं, और दे यूज्ड टू बर्न शैंकर्स. सो वो इतने डिससेटिस्फाइड थे, इतने डिसअपॉइंटेड थे एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से, दैट ही लेफ्ट द मेडिसिन. He left practicing the allopathic medicine. और उनको इतनी सारी languages आती थी. He had known French, he had known German, he had known English and so many medicines. So in the meantime he worked as a translator. So for many years he worked as a translator, and side by side he researched the data, he researched about pharmacopoeia and all. And then what happened is, once he was translating Cullen's Materia Medica. Cullen was also a stalwart, and he wrote a book
क्यूलेंस मटीरिया मेडिका, उसमें उन्होंने मेंशन किया था सिंकोना बाग के बारे में। सिंकोना एक एक बाग है पेरुवियन ट्री की। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि अ सब्सटेंस विच हैज़ एस्ट्रिंजेंट पावर can cure the malaria-like symptom in a diseased individual, and it can produce the malaria-like symptoms in a healthy individual. But Dr. Hahnemann इससे भी dissatisfied थे, so he began researching about it कि every substance which has astringency property cannot cure the symptom, malaria-like symptom in a diseased individual, and it cannot produce malaria-like symptom in a healthy individual. तो उन्होंने research किया और उन्होंने खुद ingest करना start किया सिंकोना को। तो जब उन्होंने खुद ingest करना start किया, what he found is कि उनको malaria-like symptom after a few days he started getting malaria-like symptoms. Then he led to this principle that law of similimum, that like cures like, जिस पे कि homeopathy based है totally. We move on further and I'll tell you how it works, that homeopathic medicine, how it works. So as I told you that it is made of natural substances, जैसे plants से बनती है, animals से बनती है, minerals, vegetables. तो क्या procedure होता है? Like first procedure होता है potentization, जो dynamic substance होता है, जो crude material होता है, it has to go under potentization, जिससे कि raw material की poisonous properties और वो सब remove की जाती हैं और उसकी medicinal power activate की जाती है। उसके बाद एक प्रोसेस, उसको डाइल्यूट किया जाता है, तो एक टिंचर बन के तैयार होता है और वो 1C पावर या 1X पावर में बन के तैयार होता है। और वो कैसे हम मिक्स करते हैं, कितना मिक्स करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अगर 1 पार्ट ऑफ द मिक्सचर को मिक्स करते हैं, 1 पार्ट ऑफ द क्रूड मटेरियल लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, उसको 10 पार्ट्स ऑफ द डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं उसमें, तो वो 1X पावर बन के आती है। और अगर 1 पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल लेते हैं एंड 100 पार्ट में उसको मिक्स करते हैं, तो 1C पावर निकल के आती है। एंड देन अगर हम 1C का 1 पार्ट लेते हैं, उसको 100 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल में मिक्स करते हैं, तो वो 2C पावर बन जाती है। एंड सो ऑन, लाइक 2C का 1 पार्ट लेंगे एंड उसको 100 पार्ट्स में मिक्स करेंगे, तो वो 3C पावर बन जाएगी। So these has to be diluted and the process is called as succussion. उसको vigorously shake किया जाता है ताकि उसकी efficacy increase हो जाए. This process is called succussion. See, here is the flow chart. इसमें 1% dilute करते हैं अगर tincture को 1C का 1 पार्ट लेते हैं, 99 पार्ट्स में मिक्स करते हैं और सक्शन देते हैं, तो वो 2C में कन्वर्ट होता है। एंड इफ 1 part of 2C is taken and it is mixed with 99 parts of alcohol solution and it is being succused, then it forms 3C and so on, like 4C, 5C and further these potencies are being made. So C means it is centesimal scale. Now here are few examples. जैसे मैंने बताया कि प्लांट से बनती हैं, तो कैसे क्या एग्जांपल्स हैं, लाइक फर्स्ट इज़ रेड अनियन। रेड अनियन से हमारी मेडिसिन बनती है एलियम सीपा। देन वन ऑफ द एग्जांपल इज़ आर्निका मॉन्टेना। ये एक माउंटेन हर्ब से बनती है, आर्निका माउंटेन हर्ब होती है, जिससे कि हमारी मेडिसिन बनती है आर्निका मॉन्टेना। देन वी हैव बेलाडोना, डेडली नाइटशेड। ये एक्चुअल में एक पॉइजन होता है और बेलाडोना ही मेडिसिन का नेम है और ये इससे बनती है। इट इज़ ऑल्सो अ प्लांट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव स्टिंगिंग नेटल। हमारी मेडिसिन होती है एपिस मेलिफिका, जो कि स्टिंगिंग नेटल प्लांट से बनती है। देन वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर मेड ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर है, वाइट आर्सेनिक है एंड नाइट्रम फॉस्फोरिकम है। ऐसी फर्दर एनिमल्स और ह्यूमन टिश्यूज, एक्सक्रीशंस, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब से बनती है मेडिसिन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑफ होम्योपैथी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इट हैज़ टू गो अंडर सो मेनी प्रोसीजर्स, पोटेंटाइजेशन, डाइल्यूशन, सक्शन, तो वहाँ पे कभी कभार सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। और जैसे कि बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि विनॉम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया बेलाडोना इट्स अ पॉइजन, तो लाइक कोबरा से मेडिसिन बनती है, कोबरा के विनॉम से बनती है, तो
वी हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली. कंटेमिनेशन का भी रिस्क होता है, और जो इनिशियल रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन, हिस्ट्री सब पता होना चाहिए. सो वी हैव टू मूव वेरी केयरफुली अबाउट दिस. सो एंड लाइक आई टोल्ड यू कि व्हाट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट होम्योपैथी कि इसमें माइनर सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे फीवर है या एक्यूट कोल्ड है, वो भी बहुत अच्छे से वी कैन ट्रीट एंड वी कैन क्योर एवरीथिंग. एंड ये we think that body has the power of healing itself. We treat a man in disease, we do not treat disease in men. हमारे जो fundamental principles हैं, we homeopaths, we have very different fundamental principles to cure. So we differ from conventional medicine a lot. So जैसे कि हम मानते हैं इफ़ यू गो टू अ एलोपैथिक डॉक्टर तो वो आपके सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स कंसिडर करेंगे. लाइक इफ़ यू हैव अ स्किन प्रॉब्लम, दे विल नॉट कंसिडर योर मेंटल प्रॉब्लम्स. बट वी हैव अ वेरी डिफरेंट वे टू ट्रीट एंड वी हैव अ डिफरेंट वे टू टेक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. तो हम मानते हैं कि अगर एक पर्सन है जो प्रॉब्लम में है तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम तो है ही है, प्लस मेंटल उसके सिम्टम्स भी हम कंसिडर करते हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सो ऑन. So now here are the few examples कि किस किस condition. वैसे तो homeopathy works very well in almost every condition. I mean no-pathy has 100% results, but it works very well in almost every condition. So here are few examples that I'm going to give, जिसमें कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है होम्योपैथी. लाइक चाइल्डहुड डायरिया, देन वी हैव ओटाइटिस मीडिया जो कि ईयर इन्फेक्शन होता है, वेदर इट इज़ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और इट इज़ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, दोनों में अच्छा वर्क करती है. देन वी हैव एस्थमा, देन वी हैव फाइब्रोमाइल्जिया. ये क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिसमें कि लाइक आर्थराइटिस है, जनरली ये क्रॉनिक ही होता है जिनको होता है. तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास एज सच कोई क्योर नहीं होता इसके लिए, दे जस्ट हैव पैलिएटिव्स एंड सप्रेसेंट्स फॉर इट. फाइब्रोमाइल्जिया है, बॉडी पेन रहता है, फटीग रहता है, तो इसमें भी एलोपैथ्स के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है. देन वी हैव क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम. Then we have symptoms of menopause like hot flashes. Again, if we talk about hot flashes, एलोपैथ्स के पास इसमें भी कोई ट्रीटमेंट, बिकॉज दे हैव हॉर्मोन्स ओनली फॉर menstrual problems or menopause, but that will not treat your hot flashes, sweating, anxiety, palpitations. These symptoms they cannot cover under their treatment. So that is why we work as a whole. We have a holistic approach to the treatment. Then we have certain kind of allergies like respiratory infections, if a person have allergic rhinitis problem, so we work very well on that. And few other examples are like dermatitis. Some professional homeopaths specialize in treating serious illness such as cancer, and I would like to tell you that even in cancer cases, but it obviously needs expert hands. All of the homeopaths, every homeopath cannot treat cancer cases. So, but yes, there are some homeopaths which are very expert in treating cancer also. They give relief to the patients who have cancer also, and research is going on, and it is being progressively covered. Then we have how it is administered. तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का. इवन इट इज़ easily taken by children also, pregnant lady. And how it is administered, या तो ये grains में ली जाती है, globules होते हैं which are made of lactose और goat's milk, और उसमें उसकी फॉर्म में या तो दी जाती है पेशेंट को, या फिर ये लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं. वी एडवाइज टू टेक 4 drops of liquid in a spoon of water, and repetition that varies with the case, nature of case. So these are administered in drops or grains, and it is taken once. Repetition, as I told you, that depends on the nature of case. So then
you must, and but the patient must follow the instructions of the physician very carefully. Like we advise patient not to eat anything 10 minutes before the medicine and 10 minutes after the medicine, क्योंकि ये जो medicines होती है ना वो टंग के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, तो जो ग्लोब्यूल्स भी जब पेशेंट लेता है तो ही हैज़ टू कीप अंडर द टंग, ही हैज़ टू कीप ग्लोब्यूल्स अंडर द टंग, तो वहीं से वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसलिए माउथ शुड बी क्लियर, देयर शुड बी नो स्मेल इन द माउथ। जब आप ले रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, माउथ शुड बी फ्री ऑफ स्मेल। तो ये प्रिकॉशंस जो होती हैं थोड़ी सी वो लेने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं फिजिशियन की। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप सनलाइट में नहीं रखेंगे या कोई भी स्मेली एरिया में नहीं रखेंगे, बिकॉज जैसे आप अगर परफ्यूम के पास रख रहे हैं, कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्मेली एरिया है वहाँ पे रख रहे हैं, तो इट लूजेस इट्स एफिकेसी। देन देयर इज़ वन मोर, ऑल्फैक्टरी रूट। ऑल्फेक्शन से भी ये मेडिसिन इवन एब्जॉर्ब होती है। इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वेंटिलेटर पे कोई है तो ऑल्फैक्टरी रूट से उसको मेडिसिन दे सकते हैं थ्रू नोज, दैट इज थ्रू नोज। दीज आर लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिमिलिया, दैट इज similia similibus curanter, like yours like. This is law of simplex. This is law of doctrine of drug proving. Drug proving is the process जैसे कि मेडिसिन बनती है, पहले प्रूव होती है जो रॉ मटेरियल, उसका ओरिजिन, हिस्ट्री सब नो, मतलब कि वो होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है। तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। देन कम्स डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, दैट इज पोटेंटाइजेशन सक्शन, which the raw material has to go through when the finished product is being made. Now what are the pros of homeopathy? Now जैसे मैंने डिस्कस किया था कि it is very easy to take, first of all it is very safe to babies also, infants के लिए बहुत safe है, pregnant women के लिए बहुत safe है, even pregnant women can take it easily. Then chronic illnesses में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ आर्थराइटिस जैसे मैंने दिया, या ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या थायराइड है। तो इन सब केसेस में जिसमें कि आपको लाइफ लॉन्ग एलोपैथिक खानी पड़ती है, जिसके इफ़ेक्ट एलोपैथी के इफ़ेक्ट फिर अदर ऑर्गन्स पे जाके होते हैं, तो होम्योपैथी में इन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट गिव्स वेरी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। Then it is not addictive. Like if you go to an allopathic doctor for let's say anxiety problem or let's say stress problem, तो he'll put you on sleeping pills. Sleeping pills हमेशा addictive होती हैं, they are always addictive. तो होम्योपैथी में ऐसे कोई sleeping pill नहीं होती, it doesn't have any painkillers which you get addictive to. तो होम्योपैथी क्योंकि एज अ होल वर्क करती है, इट हैज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोज ऑफ होम्योपैथी। देन वी हैव इट ट्रीट्स द इंडिविजुअल एज अ होल बाय कंसिडरिंग ऑल सिम्टम्स एज वन एंड ट्राइज टू ट्रीट द कॉज इंस्टेड ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज। सो वी ट्रीट मैन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन मैन। हम उस पर्सन के कंफर्ट के लिए वर्क करते हैं, जो कि एलोपैथ्स नहीं होते। दे जस्ट ट्रीट द डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या कुछ हैं, दे डू नॉट कंसिडर एनी ऑफ द सिम्टम, दे डू नॉट वर्क फॉर कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। सो दीज आर प्रोज ऑफ होम्योपैथी। Now, what are the merits of homeopathy? There are lots and lots of merits of homeopathy, which I would like to discuss with you all, so that I expand the knowledge of homeopathy with you all. So, first and foremost merit क्या है कि while curing one disease, it does not create another, as found mostly in allopathic treatment. तो इसका मैं बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि ऐसा होता है जिस ट्रीटमेंट जिस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, वो तो सप्रेस हो जाता है, बट देन इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम, देन इट एक्ट्स ऑन अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल है एस्मा का। एक मेरे पास पेशेंट आता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको 2 years से एस्मा होता है। ही हैज़ बीन ऑन एलोपैथिक drugs for 2 years. So while I was taking case history of that patient, I got to know that 2 years back he have had allergic rhinitis problem. Allergic rhinitis
के लिए उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया. Now allergic rhinitis is also an allergy and asthma is also an allergy. तो वो allergic rhinitis convert हो जाती है asthma में. allergic rhinitis suppress हो गई, वो palliate हो गई एलोपैथी से, तो उसने सोचा मैं तो ठीक हो गया, but then it showed the symptoms of asthma. वो body एक problem जो suppress हो गई उसने manifest किया दूसरी form में. बट ये हमेशा एलोपैथी में ही होता है, इट नेवर हैपन्स इन होम्योपैथी, क्योंकि ये ऑर्गन पे वर्क नहीं करती, ये एज अ होल वर्क करती है. सो दिस इज foremost merit of homeopathy. Then we move on the second merit of homeopathy. It is second merit of homeopathy is that the potentized drugs stimulate the power of resistance of the sick person to destroy the inimical action of natural disease, thus producing cure in the most natural way. So इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन ऐसे करना चाहूँगी कि होम्योपैथी हमेशा इम्यूनिटी एनहांस करती है बॉडी की, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स होता है, उसकी वाइटैलिटी को इंक्रीज करती है होम्योपैथी. ये कभी भी सप्रेशन नहीं करती, पेलिएशन नहीं करती. तो जब हमारी बॉडी की वाइटैलिटी इंक्रीज होगी, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, तो वी गेट द पावर टू फाइट विद द एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कोई भी माइक्रोब है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी अगर बॉडी पे एक्ट करता है तो इट कैन फाइट विद दैट. अगर आपकी इम्यूनिटी होगी तभी आपकी बॉडी फाइट कर सकती है. तो होम्योपैथी हमेशा हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है. सो दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ होम्योपैथी. देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट मेरिट ऑफ होम्योपैथी. The third merit of homeopathy is that when the diagnosis is doubtful, even then drugs can be selected on the basis of totality of characteristic symptoms and successful treatment is possible. Now इसका कैसे एग्जाम्पल होगा कि डायग्नोसिस होम्योपैथी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया विच वी सिलेक्ट द रेमेडी. जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या होते हैं, उसका ये हम उनके पास जाते हैं, वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स विद आवर स्टमक और वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स विद आवर लिवर, तो दे विल राइट यू फ्यू टेस्ट एंड देन दे विल गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. जो भी डायग्नोसिस निकलता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देंगे. बट दिस इज नॉट द केस इन होम्योपैथी. If a patient comes to us for stomach problems, we'll take a complete history of patient और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आएगी, जो भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, जो उसके फिजिकल जनरल्स हैं, मेंटल जनरल्स हैं, और जो भी उसकी पास्ट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, वो हम सब डिटेल में पूछेंगे. और फिर जो भी मेडिसिन निकल के आएगी, ऑब्वियसली विल ऑल्सो कंसिडर डायग्नोसिस, बट हमारी जो मेडिसिन होगी वो टोटली डायग्नोसिस पे बेस्ड नहीं होगी. तो इवन अगर डायग्नोसिस नहीं होता है, बिकॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स, अब पेशेंट आता है लाइक लेट्स से फॉर सर्वाइकल प्रॉब्लम, बहुत सारे केसेस आते हैं जैसे कि नेक में पेन होता है, हैंड्स में नमनेस होती है, सारे टिपिकल सर्वाइकल सिम्टम्स होते हैं. But they say that we have gone for X-ray and that is completely normal. So how come they have pain and they don't have anything in the report? Now allopaths के पास तो क्या होता है, वो पेन किलर देंगे क्योंकि डायग्नोसिस तो कुछ है नहीं. तो बट होम्योपैथी में ऐसी प्रॉब्लम जिनका कुछ डायग्नोसिस नहीं होता, उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. देन दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ होम्योपैथी. देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट मेरिट. Fourth merit of homeopathy is that in many surgical conditions like enlarged tonsils, fistula, cataract, piles, adenoids, hydrocele, nasal polyps, etc., homeopathy makes surgery unnecessary. We can avoid many surgical conditions. We can avoid surgery for many diseases like tonsillitis है, adenoids है, polyps हैं, nasal polyps especially, और हाइड्रोसील है. तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें अगर आप एलोपैथ्स के पास जाते हैं तो दे विल ऑलवेज एडवाइज यू सर्जरी. बट लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर, अगर हमें बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि सर्जरी अवॉइड हो जाए, तो वो लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ टॉन्सिलाइटिस. जनरली छोटे बच्चों के लिए आते हैं पेशेंट्स, छोटे बच्चों के लिए टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं. तो बच्चे को टॉन्सिल हुए, अब वो गए एलोपैथिक डॉक्टर के पास, उन्होंने एकदम से एडवाइस कर देना है कि टॉन्सिलाइटिस है एंड गो फॉर सर्जरी, अगर क्रॉनिक और बहुत एनलार्ज टॉन्सिल्स है तो. बट टॉन्सिल्स
जो होते हैं वो नेचुरल बॉडीगार्ड होते हैं, वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी के नेचुरल गार्ड्स होते हैं। कभी भी हमें कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो फर्स्ट गार्ड जो होते हैं फाइट करने के लिए वो होते हैं हमारे टॉन्सिल्स। तो अगर हम उन्हें सर्जरी से रिमूव करवा देते हैं, अगर हम उन्हें कट ऑफ करा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन डीप जाएगा। हम क्योंकि हाँ गार्ड्स तो हैं नहीं जो प्रोटेक्ट करेंगे किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो हमारा इन्फेक्शन डाउन इन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो जा सकता है, तो हमें सिवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टॉन्सिलाइटिस की सर्जरी नहीं करानी चाहिए। ऐसी जो दूसरी अदर कंडीशंस हैं, एडिनॉइड्स, हाइड्रोसील एंड ऑल, so we should try our best not to go for surgery for these conditions, and होम्योपैथी आप चूज करें तो वो बहुत बेटर होगा। The next merit of homeopathy is it cures diseases mildly, quickly and permanently, whereas other system of medicine leave a long convalescent। जैसे कि हम बात करें टाइफॉइड की, मलेरिया की, जॉन्डिस की, ये कुछ ऐसे फीवर्स हैं जो जैसे अगर आप एलोपैथ्स के पास जाते हैं तो वो ट्रीट कर देंगे, आपका फीवर ट्रीट कर देंगे, या कह सकते हैं सप्रेस कर देंगे या पेलिएट कर देंगे, बट जो उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। बॉडी एक है, स्टमक एक है, हेयर फॉल है, सो मेनी आफ्टर इफ़ेक्ट्स आर देयर। तो उसको होम्योपैथी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और क्विकली परमानेंटली ट्रीट होता है। ये बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं रहता उसके बाद। इट फ्रीज द बॉडी completely of microorganisms. So this is one of the merit. And I think we have missed this point. The fifth merit of homeopathy is that even a new or unknown disease can be correctly, successfully treated when the symptoms of disease are unknown. This happened in case of Asiatic cholera. Hahnemann, without having seen or treated a single case of cholera, mentioned the remedies that would be useful for his statements were subsequently verified. So इस point पे मैं बताना चाहूँगी कि unknown diseases sometimes pandemics होते हैं। हैनेमन के टाइम पे भी हुआ था, डॉक्टर हैनेमन के टाइम पे एक पेंडेमिक हुआ था एशियाटिक कॉलरा। तो उसमें एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को कॉलेरा के सिम्टम्स आए। तब कॉलेरा टर्म नहीं पता थी किसी को, तब कॉलेरा डिजीज़ नहीं पता थी। तो उसमें लोगों को वॉमिटिंग, डायरिया, राइस वाटर लाइक स्टूल्स और स्टमक एक और बहुत सारे इस टाइप के सिम्टम्स आए, और सब लोगों को सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स आए। जब सब लोगों को सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स आए तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक। बाद में उस चीज़ को टर्म दिया गया, उस डिजीज़ को टर्म दिया गया एशियाटिक कॉलेरा। डॉक्टर हैनेमन ने रिसर्च की और सबको सिंगल रेमेडी से एक रेमेडी फाइंड आउट की उन सिम्टम्स के लिए, और सबको उस रेमेडी से ट्रीट किया। तो अगर अब मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक दीज डेज वी हैव कोविड पेंडेमिक गोइंग ऑन, तो उसमें भी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एस्पिरोस्पर्मिया। मतलब इतनी सारी मेडिसिन होम्योपैथी में, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, आर्सेनिक एल्बम। आई मीन दीज आर नॉट द ओनली मेडिसिन विच वर्कड। आई एम जस्ट टेकिंग 1 or 2 नेम्स। लाइक एस्पिरोस्पर्मिया ने ऑक्सीजन लेवल बहुत सारे पेशेंट्स का इंक्रीज किया, नॉट इन एवरी केस बट केस इट इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन many number of cases. तो अगेन कोविड वॉज अननोन, कभी पहले नहीं था, तो सब डॉक्टर्स के लिए अननोन था, बट ऐसे पेंडेमिक में भी होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क वेरी वेल। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, तो उसमें भी हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे कि कोविड के क्या सिम्टम्स है हमने बोली है, उसके बेसिस पे हम एक पेंडेमिक की मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उस कंडीशन को। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेरिट। देन वी मूव ऑन टू 7th merit of homeopathy. It is that the drugs are given in the form of sweet pills or powders. They are liked by children and women. Moreover, the drugs can be administered either by mouth or through nose by olfaction. So this we have already discussed that sweet pills होती हैं जो like globules होते हैं, they are made of lactose और goat's milk, तो बहुत sweet होते हैं, तो children भी बहुत like करते हैं, और they are very easy to administer, and
इसके दोनों रूट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन वेंटिलेटर और ही डज नॉट लाइक टेस्ट ऑफ द मेडिसिन और एनीथिंग, तो ऑल्फैक्टरी रूट भी होता है, नोज़ के थ्रू अगर पर्सन स्मेल करता है तो भी ये एक्ट करती है. नाउ these we have discussed pros of homeopathy, merits of homeopathy. Now I would like to throw some light on cons of homeopathy, जो कि बहुत limited है. I don't think कि इतना कुछ major है, but then I would like to tell you about cons of homeopathy also. Homeopathic system has a vast number of medicine and the right remedy may not be available at some pharmacies. Homeopathy does not have any specific remedy. जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन में होती है स्पेसिफिक रेमेडी होती है. इफ़ वी से अबाउट फीवर वी हैव क्रोसिन, पैरासीटामोल, मतलब दीज आर स्पेसिफिक मेडिसिन. बट होम्योपैथी में ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे मेडिसिन होती है. तो इट हैज़ वास्ट नंबर ऑफ मेडिसिन. तो कभी कभार फार्मेसीज पे भी अवेलेबल नहीं होती मेडिसिन जो सिलेक्टेड होती है. तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स. देन वी हैव देयर इज़ नो फिक्स मेडिसिन फॉर अ फिक्स डिजीज कंडीशन और सिम्टम. दिस इज़ द पॉइंट आई वॉज टेलिंग यू कि स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती. तो आई कैन टेक इट ऑन द पार्ट ऑफ होम्योपैथ कि होम्योपैथ के लिए एक एक्सरसाइज है. ही शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग द सिमिलिमम, ही शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन सेलेक्टिंग द रेमेडी, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन हैं. सो व्हाट रेमेडी इज़ टू बी चूजन फॉर द केस, तो वो एक टफ पार्ट होता है होम्योपैथ के लिए. तो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉन्स ऑफ होम्योपैथी. देन वी हैव द एफिशिएंसी ऑफ द मेडिसिन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑल द ह्यूमंस आर नॉट सेम. अगेन इफ द प्रॉपर मेडिसिन इज नॉट बीइंग चूजन, देन इफेक्ट जो होगा वो मेडिसिन का वो सेम नहीं होगा हर इंडिविजुअल पे. एवरी पैथी I mean any कोई भी पैथी है उसके 100% रिजल्ट तो नहीं है. सो दिस वी हैव टू एक्सेप्ट. देन वी हैव इन केस ऑफ इमरजेंसी होम्योपैथी इज अ लिमिटेड रोल. इमरजेंसी के केसेस में लाइक कार्डियक अरेस्ट है या इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, डिस्निया बहुत एक्सट्रीम हो गया है जिसमें कि पेशेंट को एडमिट करना ही पड़ता है, तो उसमें लिमिटेड रोल है. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पॉइंट. एवरी पैथी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, बट स्टिल होम्योपैथी works very well in almost every condition. So you must take homeopathy for your problems. And next topic which I would like to discuss is scenario of homeopathy in India. क्या scenario है? Registered qualified registered homeopaths ही practice कर सकते हैं. Although there are many quacks are those are practicing homeopathy, but they are not qualified doctors, they are not registered doctors. Those who have interest in homeopathy, or they have some kind of knowledge in homeopathy, or they have learned from somewhere because they are interested in homeopathy, or they want to serve the society. But again, half knowledge is always dangerous, so they should not practice like that. But yes, this is a fact, there are many quacks. So वैसे ये qualified registered ही practice कर सकते हैं. And at present in India, homeopathy third most popular method है. अभी first is allopathy, then is Ayurveda, and then is homeopathy. Third most popular method of medical treatment after allopathy and Ayurveda. Then there are over 2 lakh registered homeopathic doctors currently, with approximately 12,000 more being added every year. तो 12,000 approx every year add होते हैं. So this is the scenario of homeopathy in India. Now next, if we talk about future of homeopathy, क्या future है? It is increasing progressively every year, day by day. 20% से increase कर रही है, and people are getting more aware of it day by day. And it has made major advances in regions like South America, Eastern Europe, Mediterranean basin, and in India it is growing at more than 20% every year. So progress हो रही है, awareness हो रही है. So please go and try it. Homeopathic medicines are now available over the counter, and treatments are often
ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज. नाउ अब ये इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर करती हैं ट्रीटमेंट इसका, ऑल्दो दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी इनएक्सपेंसिव, बट येस दे डू cover their comprehensive health insurance policy. They have the policy. Then some hospitals in India and Dubai already have homeopathic department as part of. अब वो इतना ग्रो कर रही है कि गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब होम्योपैथिक ओपीडीज होती हैं इन इंडिया में भी. एंड अनदर एग्जाम्पल इज दुबई के हॉस्पिटल्स में भी अब ओपीडीज होती हैं. सो people are now increasingly demanding an alternative to the orthodox system of Western medicine, because people are getting aware. I don't know, maybe because of Google. सब डॉक्टर्स बने होते हैं आजकल और वो गूगल करते हैं अपनी, अगर कोई सिम्टम, एक छोटा सा सिम्टम भी आ रहा है तो पीपल डेफिनेटली गूगल इट एंड वो पूरी डिटेल निकालेंगे एंड देन वो एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखेंगे कि क्या, अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो उसकी भी डिटेल निकालेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे. तो थैंक्स टू गूगल दे नो द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन. सो वो प्रेफर कर रहे हैं होम्योपैथिक और एनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, like they could consider Ayurveda also. I mean, I am talking about an alternative medicine कि people they are getting aware of side effects of allopathic medicine और वो consider करते हैं alternative medicine. तो again because of that it is growing day by day. It is practiced in 80 countries and is trusted by over 50 crore people across the world. So that is a good number. Then by future of homeopathy, I end of this topic and I'm very thankful to you for listening to me patiently. Thank you everyone.